Good morning, friends. Today we will. My name is Saurabh Pandey. Uh, मैं आज आप लोग को नेटवर्क थियोरी में कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा. उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने कैसे निकाला जाएगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझो. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे सर्किट्स होंगे, बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे. तो उसमें आपको कुछ ट्रिक्स होंगे जिसमें सिमेट्रिसिटी वगैरह का कंडीशन होगा, जिसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं. अदरवाइज़ आप निकालना शुरू करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप फाइनली गलत आंसर भी लेकर आएंगे. तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाता हूँ सिमेट्रिसिटी का फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप लोग तैयार है ना? ठीक है. तो दो सिमेट्रिक कंडीशंस होते हैं. एक होता है मिरर सिमेट्री. सिमेट्रिसिटी में दो सिमेट्रिसिटी होते हैं. एक होता है मिरर सिमेट्री और दूसरा होता है फोल्डेड सिमेट्री. ये दो सिमेट्रीज होते हैं. ठीक है. तो और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप एक्सपेक्ट न करें कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ. मैं भी अभी बीटेक पास किया हूँ. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. एंड देन so let's move on the topic. So what is mirror symmetry? So in mirror symmetry, I will take a very small circuit and try to explain you how it works, and then we will solve the big circuits as well after explaining mirror and folded symmetry. Okay, so first I will like to explain what is mirror symmetry. Mirror symmetry. तो इसमें क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या बेसिक तरीका है. ठीक है. जस्ट सेकंड. तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस हैं. अभी बोल रहा है कि आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस. मान लीजिए ये दो है, ये दो है, ये एक है. या आप आर और आर के टर्म में लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. R1 है, R1 है, R2 है और ये R2 है और ये स्मॉल r है. तो आपको कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट A and B. So how will we calculate the equivalent resistance about A and B? Can you people see that this part, are you people able to identify that? So this part and this part are symmetric to each other. This part and this part, R1 and R1, R2 and R2 are symmetric to each other. So if we put a mirror here, that seems to be symmetric. Okay, see, R1 is equal to R1, R2 is equal to R2. So how will we calculate the equivalent resistance? So suppose the current coming here was I, this one is I1, this one is I2. So this one, the current coming and the current going will be same in mirror symmetry. It will be I1 and this one will be I2. So what is happening here? I1 is coming and I1 is going, so no current is coming in this resistance. I2 is coming at this node, I2 is going out of this node, so no current is going in this. So what can we see is that this resistance is not connected because there is no current flowing through it. Okay, are you able to understand? No current is flowing through it, so this resistance can be removed. So we are removing this resistance and then we can calculate the R equivalent. So what will be the R equivalent? Now I hope it will be very easy for you to calculate. R1 plus R1 is parallel with R2. Are you able to see? Okay, I will write here. R equivalent will be
R1 plus R1 is 2R1 parallel with R2 plus R2 is 2R2. So 2R1 into 2R2 upon 2R1 plus 2R2. Okay, so 4R1 R2 upon 2 R1 plus R2. R1 R2 2R1 R2 upon R1 plus R2. This is equivalent resistance. Okay, so you can also say that this was a Wheatstone bridge. Yes, it was a Wheatstone bridge, surely, but I am not explaining you the entire concept of symmetry by Wheatstone bridge. I am trying to explain this network. I am trying to calculate this network using symmetric conditions. So this is mirror symmetry. Is it easy to understand? So do you want to solve a question, a big question on mirror symmetry? We can do that. Okay, I will give you a question and try to explain you how it is solved. So are you guys enjoying this class? I hope you will enjoy and at least learn a little from me. Try to understand and enjoy the class, because this is corona time and if you are studying properly, you will be moving way ahead from other students, because see, most of the students are average only. No one is very intelligent, they are not god gifted. Everyone has to study, and since this is corona time, so if you are studying properly, you will be way ahead of other students. Okay, so I will give you an example and try to explain you. So this is a question, this is resistance R, and then this is another point, this is resistance, this is R. All the resistances are R. Okay, and then this is also R, this is also R, this is also R, and this is also R. So every resistance is R here. Now does it seem a bigger circuit? Do you find difficult to calculate the equivalent resistance about A and B terminals? I hope you will, maybe most of you will be able to solve it, but problem is the time. You have to calculate the equivalent resistance in given time, because the competition is getting very tough now. So we will be solving this question using mirror symmetry. How I have explained mirror symmetry? Can you find that this part is, if we place a mirror here, this entire part and this remaining entire part are symmetric to each other. Okay, so here we will be, if this is current I, this is I1, this is I2. Okay, so this I1 will be going from here, this I2, so this will be going from here. Okay, so I1 is going, this current is going here. Now suppose this is I3, so what will be here? This will be I3, this will be I4, so this will be I4. So what can you see? This I3 is going, at this node I3 is coming, I3 is going, I1 is coming, and I1 is going. So can you say that this part is not connected here? This is like this. Can you say this? Because this current is going here in this resistance and not flowing here. This current I1 is flowing in this resistance and this resistance, it is not going here. So they are disconnected. We can say this, that this node is disconnected here.
Now I hope this is easier to solve. Is it? Yes, it is now easier to solve. How can we solve this? So this R and R are in series, 2R. This R and R are in series, so 2R. This is in series, and this is also R. Okay, this R, this R, and then this is 2R. 2R. This is R, and this is R. We can solve this. Is this the circuit? See, this R and this R is 2R. This R and this R, 2R. This R and this R and R. These two in series, 2R. Okay. This now we can easily calculate it. 2R is R. This is R. This is R. This is R. This is 2R. And then we have to calculate. We have to calculate from here. So if we are calculating from here, we will always start from this side, opposite side. Okay. So R and R. R and R will be 3R, and then this 2R. These two are in parallel. We are starting from this side. Okay, so R and R. These are in series, 3R, and then this 2R. So 3 into 2R upon 3 plus 2R is 3R plus 2R is 5R. So if R and R cancel, 6R by 5. So this is R equivalent. Okay. This is R equivalent. Just solve it. 6R by 5. This is the answer. Here 3R parallel 2R. Okay, we will be getting this answer. Okay. So do you want another example to understand this topic better? I will again go through one question, and then we will go for folded symmetry. Okay. Did you understand this question, dear friends? समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? तो मैं आप लोगों को फ्री में ही कुछ टिप्स दूंगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को मज़ा आए वीडियो देख के। ठीक है? क्योंकि जहाँ मज़ा नहीं आएगा ना, अगर क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ना वैसे भी बहुत मुश्किल है, तो अगर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो आप लोग कैसे देखिएगा? मैं भी यूट्यूब पे पढ़ा हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी, सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर. नेट स्लो हो जाएगा, किसी का मैसेज आ जाएगा, आपको कुछ और देखने का मन करेगा, गाने सुनने का मन करेगा, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बहुत बोर भी करता हूँ कभी कभी. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. सो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ. दिस इज आर this is R, another R, this is R, this is R, this is R, this is R. Okay, we are taking a center here, and then this is placing R, 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 R. Okay, so many R's are there. R, 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 R. Okay, and we are calculating equivalent resistance about this point. Are you getting? So how will we calculate the equivalent resistance this time? Where is the symmetricity? So see here, this point, if
इन मिरर सिमेट्री व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, ये जो है लाइन, ये बैटरी के एकदम बीचों बीच जाएगा, मिरर काट देगा पूरा बैटरी को, ठीक है। तो ये मिरर सिमेट्री हो गया। सिमेट्री ऐसे भी है, सिमेट्री ऐसे भी है, ये ऐसे हो सकता है, वो फोल्डेड सिमेट्री होता है। ये क्वेश्चन को मैं मिरर सिमेट्री और फोल्डेड सिमेट्री दोनों से बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बस मिरर सिमेट्री पढ़ा है, तो मैं इसको मिरर सिमेट्री से ही पढ़ता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको इसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये अगर I1 है तो ये भी I1 होगा, ये अगर I2 है तो ये भी I2 होगा, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, I2 अच्छे से लिख देता हूँ, I1, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये I2 हो गया, I3 है, तो ये भी आपका I3 होगा, ये अंदर आ रहा है तो ये अंदर बाहर जा रहा है, इसको आप I3 यहाँ लिख दीजिए अगर आपको सिमेट्रिसिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना है तो। I3 पे I3 हो गया, ये I4 पे I4 हो गया, I5 पे I5 तो हो ही गया, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट पे, इस नोड पे देखिए आप, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये I3 है और ये I3 है, तो ये यहाँ से आया करंट जो I3, वही करंट इधर चला गया। ये करंट क्या इस साइड आया, ये करंट क्या इस साइड आया, नहीं आया। I4 जो है, I4 चला और ये यहाँ से I4 इधर आ गया, तो क्या ये करंट इसमें गया, I4 नहीं गया ना। तो मतलब कि ये बोथ दिस नोड्स कैन बी डिस्कनेक्टेड, ओके। तो ये नोड्स को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या अभी आंसर आ जाएगा, अभी तो आ जाना चाहिए ना आंसर। ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये पैरेलल में आ गया, 2R पैरेलल में आ गया। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं इसको आपको आंसर दे दूं या आप कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट करना, आंसर है, मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ, ये है, ये 2R हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2R क्या हो जाएगा, आपको R हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं, 2R एंड 2R बोथ आर इन पैरेलल, ये आपका R हो जाएगा। सिमिलरली 2R एंड 2R बोथ आर इन पैरेलल, ये भी आपका R हो जाएगा। ये आपका R हो गया, तो इन लोग को भी हटाइए। अभी मैं इसी फोटो में बना दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपटीशन का भी कभी कभी तैयारी करना होता है, ठीक है। तो मान लो कि आप ऐसे है कुछ, इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और आप यहाँ पे सीधा लिख दो R, ठीक है। अब ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, अब ये दोनों 3R पैरेलल 3R हो रहा है क्या, R R एंड R, 3R R R एंड R, 3R, ये दोनों क्या पैरेलल हैं क्या, दोनों का पहला एंड इधर है, दोनों का दूसरा एंड यहाँ पे है, दोनों पैरेलल हो रहा है, 3R, तो ये 1.5R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है, 1.5R, ठीक है, 1.5R, ठीक है। मेरा अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप सॉरी, तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और सब बताओ आप लोग, कुछ आप लोग भी टिप्स दो मुझे भी, मैं भी कुछ नया सीखूं आपसे। शेयरिंग इज लर्निंग, इफ यू आर लर्निंग, क्या है जो भी है, आप समझ रहे हो ना मेरा फीलिंग्स। आप शेयर करोगे नॉलेज को, इफ यू आर शेयरिंग द नॉलेज, यू आर गोइंग टू गेट मोर। जितना शेयर करोगे उतना आपका बढ़ेगा। हर एक चीज़ शेयर करते हो घटता है, पैसा शेयर करते हो तो घटता है ना। 10 रुपये आपके पास है, आप किसी दोस्त को 2 रुपये दे दिए, तो आपके पास 8 रुपये होंगे, घट रहा है। लेकिन अगर आप वही दोस्त को एक क्वेश्चन खुद पढ़े, उसी टॉपिक पे आप दूसरा क्वेश्चन, या वही सेम क्वेश्चन आप अपने दोस्त को भी बताएं,
तो आपको प्रैक्टिस हो गया, उसको तो फ़ायदा हुआ ही, आपको भी फ़ायदा हुआ। हो सकता है उसको कुछ डाउट होगा, जो आपको भी डाउट होगा, लेकिन आपने नेग्लेक्ट कर दिया होगा और जल्दी से समझ लिया होगा, बिना समझे हुए रट लिया होगा। करते हैं ना आप लोग? मैं भी करता हूँ, करता था भी, अभी करता भी हूँ। ठीक है, तो अच्छा बात ये है कि आप लोग शेयर करें। आप उसके साथ अगर डाउट सेशन में बैठेंगे, समझेंगे उसका डाउट, हो सकता है कि आपको आपको भी क्लैरिटी होगा उससे। इसलिए शेयरिंग अगर कर रहे हैं ना नॉलेज का, तो बढ़ता है नॉलेज। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बीच में बोलता हूँ, टाइम पास भी। तो वीडियो बड़ा हो रहा है क्या? 20 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लो यार, क्या पता कल कौन हो, कौन कौन ना हो, क्या पता। अभी फोल्डेड सिमेट्री है, ठीक है, मैंने मिरर सिमेट्री पढ़ा दिया आप लोगों को। फोल्डेड सिमेट्री, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, फोल्डेड, SYMETRICI फोल्डेड सिमेट्री। ठीक है, स्पेलिंग सही है? मेरा राइटिंग कैसा है ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में, अगर इम्प्रूव करना हो तो इम्प्रूव भी करूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ ना इसमें, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता मैं। ठीक है, तो फोल्डेड सिमेट्री अभी पढ़ता हूँ। तो फोल्डेड सिमेट्री में क्या होगा, ये देखो आप, ये भी कुछ रेजिस्टेंस ही है, नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस। भाई लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस है, लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो ये आर है, ये 2R है, ये आर है, ये 2R है, तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा है इसके अबाउट? ये स्मॉल आर है मान लो, R2R सिमेट्रिक हो रहा है? बताओ, आप ही बताओ, R2R सिमेट्रिक है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा सिमेट्री। आर और 2R कैसे सिमेट्री होगा भाई? आर के साथ सिमेट्री होगा ना, सेव संतरा के साथ सिमेट्री थोड़ी करेगा, सेव तो सेव के साथ ही करेगा सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिसिटी यहाँ से नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है फिर? क्योंकि मैं तो टॉपिक सिमेट्रिसिटी का पढ़ा रहा हूँ। सोचो, पॉज करो वीडियो, आधा मिनट सोचो, अगर आप तेज हो तो 5 सेकंड में बता दोगे, और आप थोड़े कमज़ोर हो तो आधा मिनट, क्या फ़र्क पड़ता है, फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए ना। तो सिमेट्रिसिटी इसके अबाउट हो रहा है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। सिमेट्रिसिटी ऐसे हो रहा है, ये आर के साथ हो रहा है, ये 2R के साथ हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं? तो आपको ये लग रहा है क्या कि ये पार्ट को अगर मैं फोल्ड कर दूं इस पे तो छप जाएगा, आर 2R जैसे ये रेजिस्टेंस होता, ये अगर मैं इसको फोल्ड कर देता तो क्या इसके ऊपर आ जाता? इसको मैं ऐसे उठा के इस पर डाल देता, इसको उठा के मैं ऐसे डाल देता। ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। कि मान लो ये पेज होता या एक प्लेन होता, प्लेन, ठीक है, तो इस प्लेन को मैं अगर इस एक्सिस से फोल्ड कर दूं तो ये आर के साथ आ जाएगा, ये 2R के साथ आ जाएगा, आएगा। बहुत गर्मी भी हो रहा है आज, टॉपिक बहुत हॉट है, हॉट्स। ठीक है, तो हाँ, तो ये दोनों कैसे सिमेट्रिक हो रहा है? इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है। तो अभी कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बताओ? देखो इसका तरीका क्या होगा ना, वो करंट हम लोग फ्लो करा रहे थे ना, इसमें हम लोग वोल्टेज का बात करेंगे। मिरर सिमेट्री में करंट हो रहा था, इसमें हम वोल्टेज का बात करेंगे, फोल्डेड में वोल्टेज का बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये VA है वोल्टेज, अबाउट ए एंड अबाउट V। अगर ये VA है और ये VB है वोल्टेज, VB दिख रहा है, VA VB। अभी देखो सिमेट्रिक है ना ये, तो अगर ये VA है तो ये भी VA होगा, ये VA है तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये VA तो ये भी VA। एक्सक्यूज मी,
आज मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, ठीक है। वी ए सिमिलरली, और अगर इसमें आपको सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रहा तो ये तो तार है भाई, ये तार है। तार के अबाउट थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कि प्योर तार होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सिंपल कंडक्टर है, कंडक्टर के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। थियरी में तुम लोग यही पढ़ते हैं ना। तो वी है, ये वी तो ये भी वी वी। अभी देखो मिरर सिमेट फोल्डेड सिमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी ये अगर वीसी हुआ तो ये भी वीसी होगा। क्यों? क्योंकि ये फोल्डेड सिमेट्री है। क्यों होगा? ये वी ए वी सी, ये वी सी वी ए वी सी वी, ये फोल्डेड सिमेट्री है। फोल्डेड सिमेट्री में हमेशा वोल्टेज सिमेट्रिक होता है। क्यों वोल्टेज सिमेट्रिक होता है फोल्डेड सिमेट्री में? आप समझ लीजिए, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। वी ए था तो वी ए पी ए, ये तो समझ में आ गया क्योंकि एक वायर था। वी बी है तो वी बी, ये भी क्योंकि वायर था। लेकिन ये अगर वी सी है तो ये भी वी सी है, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है। तो ये अगर वी सी तो ये भी वी सी, ठीक है। अभी देखो, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। कैसे हो गया आसान? अभी देखो, वी ए को मान लो वी ए लिखा यहाँ पे, वी बी को यहाँ वी बी लिखा, और यहाँ पे लिख दिया वी सी। तो वी ए और वी सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? वी ए वी सी आर, वी ए वी सी, इसको टिक मार देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। वी ए और वी सी, ये भी तो वी ए और वी सी ही है ना। ये रेजिस्टेंस, ये भी तो वी ए और वी सी के बीच में ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आर। सीख लो, अगर नहीं आता है तो ऐसे भी लिखा जाता है। क्या करोगे अभी? ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। देखो वी सी और वी बी के बीच में अगर टू आर है, वी सी और वी बी इसके बीच में टू आर है, ये हो गया, ये पहले मैंने कर लिया था। ये टू आर हो गया। और एक वी सी और वी बी के बीच में भी टू आर है, एक और, ये टू आर। और हमको निकालना है वी ए और वी बी के बीच में इक्विवेलेंट। क्या बन जाएगा ये? आर आर पैरेलल में है तो आर बाई टू आर पैरेलल में है, और ये पूरा सीरीज में है। तो ये आपका टू आर पैरेलल आर हो जाएगा। ये आपका निकल गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट ये आ गया 1.5 आर, है ना। 0.5 आर और 1 आर, 1.5 आर हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये फोल्डेड सिमेट्री है। तो फोल्डेड सिमेट्री में क्या होता है दोस्तों? आपको बच्चों तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद भी बच्चा हूँ। आपको बच्चा बोलूँ? दोस्तों बोलता हूँ, मित्रों बोलता हूँ, क्या बोलूँ? मित्रों ऐप डाउनलोड किया कि नहीं? इंडियन है कि पाकिस्तानी है? हाँ, मित्रों ऐप इंडियन है कि पाकिस्तानी है? सुना कि चिंगारी यूज़ कर रहे हो इस समय तुम लोग टिकटॉकर्स। यार ज़माना बदल रहा है अभी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फोल्डेड सिमेट्री का, आप ज़रा बनाओ, ठीक है। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस क्या है? आर है, आर। और मैं ये सिर्फ आर नहीं हो सकता, ये टू आर भी होगा, कोई आर होगा, कोई टू आर होगा। तो अभी क्या करना है? अच्छा, तो आप लोगों को कौन सा सिमेट्रिक लग रहा है? क्या ये ऐसे सिमेट्री नहीं हो सकता? अगर ये ऐसे सिमेट्री हुआ तो कौन सा सिमेट्री हम यूज़ करेंगे? मिरर सिमेट्री यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ फोल्डेड सिमेट्री, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। ये जो बैटरी है इसके ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके ऐसे जा रहा है, ये सिमेट्री कोला एक्सिस बैटरी के ऐसे जा रहा है। बैटरी को कैंसिल करता हुआ जा रहा है फोल्डेड में, और मिरर में इसके जस्ट सीधा जा रहा था,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो याद करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा लगाना है, कहीं भी कुछ भी नहीं लगा देना है। तो ये आपको मैंने बस ऐसे बता दिया। अभी तो इसमें दोनों सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, मिरर सिमेट्रिक भी है और फोल्डेड सिमेट्री भी है। आपको मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, तो दिक्कत हो गया क्या? एक सेकंड रुक जाओ यार, टेक्नोलॉजी बहुत लफड़ा करता है। ठीक है, आई एम बैक। यस यस, सो आई एम बैक। तो इफ आई एम बैक आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं सुपरमैन थोड़ी हूँ, आई एम बैक तो ताली बजेगी। सुपरमैन तो मैं तभी बनूंगा ना जब मैं क्वेश्चन आपका बना दूँ। तो भी बनूँ ना बनूँ क्या पता, लेकिन फिर भी अपने लिए तो खुश होने के लिए बोल सकता हूँ कि मैं सुपरमैन हूँ आप लोग के लिए। हूँ या नहीं? फ्री पढ़ा रहा हूँ यार, अच्छा काम कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। तो फोल्डेड सिमेट्री, और ये मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूँ फ्री पढ़ा के, नहीं। मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था ना शेयरिंग, तो मैं शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। तो कभी ये मत समझना कि मैं फ्री में पढ़ा के एहसान कर रहा हूँ आप लोग के ऊपर। यू शुड आस्क क्वेश्चंस टू मी, ओके। फाइन, so we will be solving this question with folded symmetry. So this is VA and this is VB because these were terminals, no? VA VB। अब ये सिमेट्रिसिटी इसके अबाउट हो गया, तो अगर ये VC हुआ तो क्या ये होगा, ये भी VC होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये आप इसको मान लो VO, VD भी मान सकते हो, VO मान लो, जो भी मानना है मानो, ठीक है। तो अभी ऐसे चल रहा है। अब इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आप लोग को एक होमवर्क दे दूंगा, आप लोग उसका आंसर लाना, या इसी क्वेश्चन को आप मिरर सिमेट्री से बनाना, और आई होप यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, क्योंकि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, आप मिरर से बनाओ या किसी और से बनाओ, आंसर तो आंसर है। क्यों? आंसर तो आंसर है, उसको क्या पता कि आप मिरर से बना रहे हो, किससे बना रहे हो, किससे बना रहे हो। चलो, ये VA हो गया, ये VB हो गया, ये आप मान लो VC, और ये मान लो VO, ओके। तो VA और VC के बीच में अगर ये R है, तो क्या VA और VC के बीच में ये R, ये VO कहाँ से आ गया, VO यहाँ पे, तो ये भी R है ना, VA VC, VA VC, VA और VC पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो VA और VC पॉइंट यहाँ भी तो है, तो VA और VC पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू R, VA और VC के बीच में, एक और यहाँ पे R, एक और यहाँ पे R, ये R तो पैरेलल हो गया ना, तो आप इसको सीधा R/2 लिख लो। अभी थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा बाबू, R/2 हो गया, ये मैंने ख़त्म कर दिया। VB VC, VB VC, इसको VC मान लो, अच्छा VB VC यहाँ पे, VB VC, VB VC, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी R हो गया, क्योंकि R/2 हो गया, क्योंकि R पैरेलल R हाफ, तो अगर दो इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है या इम्पीडेंस आ रहा है, तो हाफ हो जाता है अगर पैरेलल में हो तो, और ट्वाइस हो जाता है अगर सीरीज में हो तो, R प्लस R 2R हो जाता है ना, और पैरेलल में R पैरेलल R/2 होता है, ठीक है। तो ये मैंने चारों का कर दिया, VA VO VA VO, एक VO पॉइंट ले लो यहाँ पे, कहीं भी ले लो यार, VO मान लो इसको, VO कहाँ मानोगे, मान लो यहाँ पे मान लो VO, तो VA VO R है, VB VO भी R ही है, और ये VC VO ये तुम्हारा R/2 है। क्यों? क्योंकि ये VC VO और VC VO R/2 पैरेलल में हो जाएगा। तो मैं अब इसके अबाउट निकाल रहा हूँ,
R/2 ये कितना था, ये R, ये R, ये R/2, ठीक है। तो अभी आपको ये कौन सा दिख रहा है, कौन सा कोई ब्रिज वगैरह दिख रहा है क्या? ब्रिज से बनाना है, ब्रिज से बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है। ये ब्रिज वैसे है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये आपको इसको हटा सकते हो, ठीक है। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बस समझा रहा था। तो ये R/2 R/2 R हो गया पैरेलल विथ 2R, तो R इंटू 2R अपॉन 3R, R प्लस 2R 3R हो गया, एक R से एक R गया, 2R/3 1.5R R इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन मैंने मिरर सिमेट्री में बताया था क्या? बताओ बताओ बताओ। ये सही है, ये सही नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। ये सही था, वहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। क्या गलत हो गया यहाँ पे? एक्चुअली बीच में न्यूज़ मैंने सुनना शुरू कर दिया था, तो कोई बात नहीं। ये VA हो गया, ये VB हो गया, ये VC हो गया, और ये आपको VD हो गया, ये VO हो गया, ठीक है। तो VA और VC R, VA और VC R, तो ये R/2, ये दोनों हो गया। VB और VC, VB और VC, VC तो VC, VB और VC R/2, VC VO, VC VO, ये भी R/2, ठीक है। VA VO, VB VO, VB VA VO, एक VA VO। यार हमको इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा सिमेट्री दोबारा लगाओगे? ये मिरर सिमेट्री लगा दो ना भाई, ठीक है। क्यों? ये R/2 R/2 R, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। मिरर सिमेट्री सही होगा, या व्हीटस्टोन ब्रिज से भी यही होगा। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो, कितना हो रहा है? R/2 R/2 R हो गया पैरेलल विथ 2R, R एंड 2R, R इंटू 2R अपॉन 3R, तो 2R/3। मैंने कहाँ गलती कर दिया था पर देखना आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया फोल्डेड सिमेट्री का, इस क्वेश्चन का आंसर। आपको मज़ा आया आज का क्लास में? बताओ बताओ आप लोग, मज़ा आया आप लोगों को आज का क्लास में? अगर मज़ा आया तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ? होमवर्क दूँ? एक होमवर्क ले लो फिर, तो मज़ा आया, तो मैं समझूँ कि आपने कुछ सीखा, ठीक है। तो मैं समझूं कि आपने कुछ सीखा, क्या मैं समझूंगा कि आपने कुछ सीख लिया, ठीक है। आप इसके अबाउट निकालो। ऑल द रेजिस्टेंसेस आर 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 आर, कितने आर? कितने आर? आर इक्विवेलेंट निकालिए आप लोग इस क्वेश्चन का, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अभी, आप लोगों को मज़ा आया ना? तो फिर अगला वीडियो के लिए वेट करो,
अगला वीडियो भी बनाऊंगा अगर अच्छा रिस्पांस हुआ तो। ठीक है, मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बनाऊंगा, अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो वगैरह थोड़ा शेयर करना, क्योंकि ठीक है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और ये कैमरा को बस पढ़ाना तो बहुत टफ है बाबू। मैं भी सोच रहा था बहुत ईजी है। और अगला बार आओगे तो मैं थोड़ा बेटर वे में पढ़ाऊँगा। मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैं शायद थोड़ा नर्वस भी था। लगा आप लोग को? पता नहीं, लगा तो कोई नहीं, नर्वस होता है सभी लोग। आप लोग भी तो असेंबली में जाते थे तो नर्वस हो जाते थे, होते थे या नहीं? ठीक है फिर, चलो बाय।